તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી. જગત કુસંગી જ દુઃખ, જગત કુસંગી જ દુઃખ, કેવલ સત્સંગી જ સુખ. કેવલ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનું હસતું મોં, દાદાજીનું હસતું મોં, શમની દર્શન થાતા સુખ. શમની દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મહારાજે, હીરા મોતી મહારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના ડગલું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સતિયા વિના ડગલું ઠરતું નથી. હારે ઉઠી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી. દુનિયાભરમાં લોકો લાગે, દુનિયાભરમાં લોકો લાગે, સત્સંગ વિના સૂનો લાગે. સત્સંગ વિના સૂનો લાગે. બિરવો દિવસ રાત જાગે, બિરવો દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ વાંગે, જ્ઞાની રોકો અતિક્રમના જી, આતમ રમના વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. આતમ વિના કાંઈ રૂચતું નથી. હારે ઉજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, હારે ઉજી પ્યારાજી, હારે હોજી પ્યારાજી. જય સચિદાન. जय सच्चिदानंद। नव कलम बोलो। एक मिनट, कौन है उधर? there ओके ओके 1 2 1 2 करो। अक्षय काका नंबर 1। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય કે દુભાવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભે એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા नंबर 3 श्रेया नंबर 3।
એનો સાઉન્ડ નથી આવતો. ગો હેડ સર. અક્ષય કાકા. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોળ ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોળ ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ. દિવ્યાબેન ત્રિમંત્ર બોલાય. અક્ષય પ્રદીપ દાદા આવવાના હતા, આવ્યા નથી. ટ્રાય કરે છે ફોન. હા, ઓકે. હા, અને એ ના જવાબ તો દીપક આનંદ કરજો કે હું ત્યાં સુધી આ થોડું ચલાવી છું ગાડી. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાનમ, નમો અરિહંતાનમ, નમો વજ્જાયાનમ, નમો બુદ્ધાનમ, નમો લોય ચવચાવનમ, નમો લોએ સવ સાહુનમ, એચો પંચન મુકારો, એસો પંચન મુક્કારો, તવ પાવપનાચનો, સૌ પાવપનાસનો, મંગલમ ચ ચવચમ, મંગલાણં ચ સૌએસ્મિ, પલ્લમ હવૈ મંગલમ. પરમં વૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. ओके श्रेया, आपका साउंड है? संभळाय. ओके. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन विचयन का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं. ये दादा भगवान, मैं आगे
सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। कोरल, हे दक्ष, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को छोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी प्रेरणा की निर्देशन रूप में आप टूट जाए, मैं पढ़ाई से ढंग से करूँ, वैसी मुझे शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमने आपके बच्चे मैं आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। ओके, ये 3 दिनों में डेली एक्टिविटीज में आत्मा प्रति प्रार्थना। ओके दक्ष आत्मा दगमन पलगु दक्ष लगे। आत्मा दगना प्रियल फ्लेटा। आत्मा दगना परमानेंट टेम्पररी। जय सच्चिदानंद। ओरल, ओरल सेपरेशन प्रेयर। हे दादा भगवान, आप अलग कर। हे दादा, हे श्री रत्न दादा भगवान, आप अलग कर रिलेटेड है। हे श्री रत्न दादा भगवान, आप परमानेंट कर टेम्पररी। विनय, જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કનિષ્કા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કનિષ્કા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, કનિષ્કા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। ओके, तो 3 दिन कैसा रहा? पेन और पेनलेस रहा डेली एक्टिविटीज में? करिश्मा, हाँ, आपका तामिल में कैसा चला 3 दिन? कुछ किया? हाँ, नहीं किया राइट? किया क्या किया था? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, तमिल एग्जाम के लिए रिवीजन किया था। कुछ लिखा, पढ़ा, लिखा? हाँ, हाँ, किसको दिखाया? मैंने बोला था पप्पा को दिखाने का। मोनिका, हाँ, टेल योर पप्पा हाँ, he must review it। तो पापा को हाँ। आता है तमिल? हाँ, तो ओके, he must review और उसका सिग्नेचर करके हमको कॉपी भेजने का। करिश्मा, हाँ, ओके। खुशी, आपको कैसा रहा? मुझे इस 3 दिन में सैटरडे को मैंने मम्मी की हेल्प नहीं की थी, उसमें पेन हुआ था। सारा दिन 24 आवर्स? नहीं, कितना? हाउ मेनी आवर्स? मुझे थोड़ी देर पेन हुआ था कि मैंने मम्मी की हेल्प नहीं की थी। नहीं, मैंने ऐसा पूछा कितना आवर्स मम्मी को हेल्प किया? मैंने हाफ एन आवर किया था। हाफ एन आवर तो बड़ी क्या, सारा 24 आवर्स की बात करते हैं आप। वो तो नॉर्मल है ना, एवरीडे करने का होता है। दूसरा कुछ किया? नहीं,
आपको दुख तो नहीं हुआ, आपको दुख नहीं होता है तो क्या फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको, मोनिका। मार्क्स तो नो, आप हम बोलते हैं कुछ करते नहीं आप। एक सैटरडे आधा घंटा मम्मी के साथ बात किया, हेल्प किया, और दूसरा क्या किया सारा दिन? स्टडी किया, मैथ नहीं किया। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? कुछ ऑब्जेक्टिव है क्या नहीं आपको, कि फेल होने का ऑब्जेक्टिव है? वो भी चलेगा, ऑब्जेक्टिव वो रखो, मजाक करो। मोनिका, हाँ जी सच्चिदानंद, इन 3 दिनों में मुझे पेन 7 दिन नहीं किया, आधे में रह गया इसलिए हुआ था। और साथ ही टाइम टेबल प्रॉपरली नहीं बनाया और उसे फॉलो भी नहीं किया, तो इसमें मुझे पेन हुआ। कुछ ही टाइम टेबल बनाया अभी एग्जाम की आती है? नहीं। नहीं। व्हाट इज, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ में खुशी? सोचो, हमको बताना। एक ऑब्जेक्टिव है फेल होने का है, झाड़ू मारने का है, कि पापा के साथ दुकान में जाने का है कल से। कश्मीर तो गुम हो गए। दक्ष, हाँ, जैसे चीता दिन इतने दिन मुझे आज ये पेन हुआ कि मैंने आज मम्मी के अलावा और किसी की भी हेल्प नहीं करी। क्यों? अ, 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 इतना क्या बिजी था? नहीं, तो नहीं करने का था, वो तो इंटेंट नहीं था। ओ खुशी की जैसा है, इंटेंट नहीं था कुछ करने का। वेरी वेरी ब्रिलियंट लोग आप बच्चे लोग, कुछ इंटेंट ही नहीं है। पापा पापा मम्मी खाने देता है, स्कूल जाके आता है, मजाक करते हैं। ओके, स्टडी के पे श्रेया, आपने, आपका कैसा है? इन दिन में मैंने मैथ्स और हिंदी का कोई रिवीजन नहीं किया था, उसमें मुझको दुख हुआ था। नहीं, डेली एक्टिविटीज में कैसा रहा 3 दिन? एक्सरसाइज नहीं किया था। कैसा? क्यों, टाइम नहीं था, इंटेंट नहीं था करने का, छुट्टी है? आगे हम्म, आलस आ इंटेंट, गई। इंटेंट नहीं था, ऐसे बोलो, डोंट से आलस। नो इंटेंशन, जैसे खुशी की जैसा, ये सब खुशी के कंपनी में जाओगे तो मजा आएगा। ओके खुशी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड। आपको गोल क्या है हमको प्लीज बताना, नहीं तो आपको पापा को पूछना पड़ेगा कि खुशी का गोल क्या है। ओके, ओके। एग्जाम किसने स्टडी किया था ये 3 दिन होम घर पे, कि नहीं ने किसी ने नहीं किया? हाथ नहीं दिखता है हमको। और ये एक एकाग्रत चिक करके किया था कि ये भूल गया सब? क्या था? किसने किया? असीम जयजयकार किसने किया था? करिश्मा तो नहीं करती है उसको, तो उसका तो गोल नहीं, कुछ है ही नहीं। खुशी, आप किसने सुना आपने किया था? 3 दिन किया था? और सैटरडे तो आपने स्टडी नहीं किया, संडे ने स्टडी किया, मंडे किया था? आज नहीं किया था, मैं संडे को ही किया था। संडे, संडे क्या स्टडी किया था? हाँ, साइंस। क्या, क्यों, क्या हो गया था? क्या इंटेंट था संडे स्टडी करना? क्या स्टडी में किया था? हाँ, संडे में क्या किया था? साइंस में, हम्म, साइंस की स्टडी की थी। बस उतना ही किया? कितना घंटा किया था, 15 मिनट? नहीं, 1 घंटा। हाँ,
1 घंटा। बस बहुत हो गया. Saturday, Sunday, you studied 1 hour. Congratulations. Very good. Good job. ये क्या करने का था? ओके. क्या क्या कहो? 3 दिन में कुछ क्वेश्चन पकड़ा आपने? मोनिका? इन 3 दिनों में मैं पढ़ाई में मुझे डिस्ट्रैक्शन हुए थे कि मेरा मन कह रहा था कि ब्रेक ले लो, तो उस समय मैंने क्वेश्चन को पकड़ा और Why do you need break? मैं जब भी पढ़ाई बैठती हूँ आई कॉन्सेंट्रेटेड 10 मिनट्स में एकाग्र रहकर पढ़ाई करती हूँ और बाद में 5 मिनट्स ब्रेक लेती हूँ ये और कौन सा वापस जगह? इसलिए स्कूल में 10 मिनट के बाद ब्रेक देते? नहीं नहीं तो यू आर नॉट सीरियस, मोनिका. हम्म, एटलीस्ट 1 hours, 1 घंटा तो कॉन्सेंट्रेट करके करने. श्रेया, क्लास कितना होता है? दक्ष, क्या? कोई जवाब नहीं दादा देते. दादा आपकी आवाज स्टक हो रही है आवाज कट हो Oh. गई. Okay, I don't know why. Okay, स्कूल में क्लास कितना आवर्स का होता है? 45 minutes. हाँ, एटलीस्ट 45 मिनट तो बैठ सकते हैं ना. बाद में 10 मिनट ब्रेक कर सकते हैं. हाँ सो आप, मैंने कहा यू नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग, 10 मिनट में तो यू नो इंटरेस्ट. ओके, खुशी आपका तो कुछ सब मालूम पड़ गया. दक्ष, सच्ची याद है मुझे इतने दिन में 2 दिन ये कुसंग हुआ, संडे और मंडे को, कि मुझे पतंग उड़ानी है. पर ज्यादा मैंने मम्मी से एक बार पूछा था और मैंने पतंग उड़ाने के पहले 1.5 hours मम्मी को पढ़ाई करके दी थी और उसके बाद 1.5 hours पढ़ाई करके दी थी. ये करिश्मा किधर गुम हो जाती है? और आज 2 hours और आज वो आप लेने के लिए और दादा आज पतंग उड़ाने के बाद मैंने 2 hours एक्स्ट्रा स्टडी करके दी. आओ, वेरी गुड. पतंग था. श्रेया, आपको कुछ सामने नहीं है? नहीं, वो ये सैटरडे और आज संडे में नहीं थी, तो सैटरडे और मंडे को मुझको मैथ्स करना था, तो फिर मेरा मन कहता था कि गुजराती कर लूँ, उसकी एग्जाम है, और फिर मैं साइंस करने लगी. मैथ्स का रिवीजन मैंने किया ही नहीं. नहीं, वो तो that's your choice, it's not a big deal. Okay. ओके, तो क्या अपना गोल क्या है? कुछ करने का है कि नहीं? देखो, सैटरडे संडे यू हैव टू गिव योर टाइम टेबल. हम नहीं बोलता है कि मेक सैटरडे संडे सेम एज डेली लाइफ. ओके, इट इज नॉट लाइक दैट. मालूम पड़ा आपको? पर ये तो स्केड्यूल कि हमको 2-3 घंटा पढ़ने का नहीं करने का चलेगा. सैटरडे काइट फ्लाइंग था, संडे काइट फ्लाइंग, दैट्स ओके. यू हैव टू स्केड्यूल के करने का था कि नहीं करने. दैट इज योर ऑब्जेक्टिव होना बोल. टाइम टेबल. ओके, कॉलम नंबर 1, 2, 3 में, कॉलम नंबर 1 में क्या भूल आपके मिल सकती है? ओ, आज तो भूल गया मैं. टीचर प्रदीप दादा, 2 टीचर है आज. दादा मैं श्रेया, हूँ ठीक. आर यू रेडी दक्ष? हाँ. 1 मिनट.
हाँ, जय सच्चिदानंद। श्रेया, कैन यू हियर मी? प्रविदा का सुनाई देता है? हाँ जी। श्रेया को नहीं सुनाई देता है? ओके, दक्ष, आप टीचर है, आप दक्ष टीचर है, आपको पढ़ाएगा प्रदीप दादा कुसुम के बारे में। जय सच्चिदानंद। दादा ने हमें उस दिन यह बताया था। हाँ, अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त कई प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के दोस्त ऐसे दोस्त चुनना चाहिए जो पढ़ाई में अच्छे हो। हाँ, ऐसे दोस्त नहीं चुनना चाहिए जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, जो कि अपना टाइम वेस्ट करते हैं और जब टीचर पढ़ा रही है जब बातें करते हैं। दूसरे प्रकार के दोस्त ऐसे दोस्त जो चरित्र या में कुछ अच्छे हैं। हाँ, दूसरे प्रकार के दोस्त ऐसे दोस्त जो चरित्र या में बहुत अच्छे हो और जो सभी को हेल्प करते हैं और जिनका निश्चय है या अच्छे हैं। ऐसे दोस्त नहीं चुनना चाहिए जिनका लक्ष्य निश्चित नहीं है और जो बुरे तो दक्ष, आप कल अच्छी तरह से पढ़, 2-3 दफा पढ़ के बोलने का। ओके, कल बराबर पक्का करके। श्रेया, no sound. No sound. ओके, तो पहली कलम में से आपका क्या मिस्टेक मिल सकती है? खुशी, हमारी वाणी से और हमारे मन वचन कार्य से सामने वाले को दुख हो, अहम डूबा हूं उनका। ओके, वेरी गुड। नंबर 2 में पिताक्षी भाव नहीं सुनाई देता है। श्रेया, ओके। मोनिका, नंबर 2 में हमें धर्म को विनय देना है, सभी धर्म को विनय करना है। कैसे करेगा आप? किसी का धर्म को कैसे विनय करेगा? सबको रिस्पेक्ट देने का है। हाँ, और तीसरे में क्या होता है? हमारे टीचर्स को और हमारे गुरु को कब लघुतम में रहना है, उनके मिस्टेक क्या मिलता है वो करने का। अवर्णवाद अपराध अभी नहीं करते हैं तो मिस्टेक मिलते हैं, और मिस्टेक है। ओके, नंबर 4 में क्या मिल सकता है? इसको या मालूम है? जी, हमने हम
हमारे विचार से हम उनको अभाव करते हैं, तिरस्कार, अभाव और तिरस्कार। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रदीप दादा, थोड़ा टाइम में बताओ कि अभय तिरस्कार कैसे पकड़ा जाता है। भाव तिरस्कार, ये जो किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसके प्रति हमें भाव नहीं आता है, जैसे मतलब कि वो जो अंदर से उनके प्रति जो लागनी होनी चाहिए होता है, लोगों को देख के हमारा अंदर से उनका हमारा परिणाम नेगेटिव हो जाता है, बराबर। और तिरस्कार ये होता है कि हमारे से जब आदमी को ऐसा लगता है कि मैं उनसे आगे हूँ, बड़ा हूँ, अच्छा हूँ, तब ये जो अपने से जो लोग नीचा समझते हैं ना मुझे, उनके प्रति तिरस्कार भाव आता है। तो वो जो तिरस्कार भाव है वो बहुत दुख लाने वाली चीज है। इसीलिए हमें समझो कोई कोई टीचर ने या समझो कि आपकी मम्मी ने भी कुछ ऐसा व्यवहार किया तो उनके प्रति अभाव आ जाएगा। कैसे आता है? तो क्या आपने कुछ बोला और उन्होंने आपकी बात रिजेक्ट कर दिया, और तो आपको मन में ऐसा हो जाएगा यार हर बार मैं बोलती हूँ तब मेरी मम्मी ऐसी ही करती है, तो उनके प्रति अभाव आ जाता है। हम समझ मतलब भाव नहीं आना, प्रेम नहीं आना, ऐसा बोला जाता है। मालूम पड़ा? तो मोनिका, खुशी आपको कुछ बोलती है तो आपको क्या रिएक्शन होता है? तो बहुत तिरस्कार होता है? होता है। खुशी आपको होता है? क्या? हमने अभी कुछ बोला आपको, मेरे पे अभाव तिरस्कार आ गया? नहीं। क्यों? क्यों? कोई हमारा इंसल्ट करता है तो उनके प्रति अभाव आ जाता है। कोई डांटी देता है तो क्या होता है प्रदीप दादा? है? कोई डांटी देता है तो? हाँ, डांटी देता है तभी उनके प्रति जवाब दो, उनका नाम नहीं दे रहा है, वो बराबर आदमी नहीं है, वो व्यक्ति बराबर नहीं है। और तिरस्कार तो बहुत डेंजर है, वो बहुत नुकसान करता है। तिरस्कार से तो खूब नुकसान होता है, लक्ष्मी भी नहीं मिलती है और इंसान को बहुत दुख पड़ता है। इसलिए तिरस्कार से बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक जीव के अंदर भगवान होता है, जिसे हम उनको शुद्धात्मा बोलते हैं, और दूसरा हर एक जीव है वो उनका कर्मों के हिसाब से उनका जीवन है। हमें उसके साथ कैसे डील करना वो हमें सीखना चाहिए, लेकिन उसको जो छिट छिट करते हैं ना, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए उनको। अभाव तो बहुत बातों बातों में आता रहता है। समझो कि अगर आपकी कोई ने बात बराबर नहीं सुनी, समझो उन्होंने फ्रेंड्स को बोला कि मुझे तुम ये टाइम पे किताब, मुझे ये किताब देना वो देना, तो उन्होंने दी होगी लेकिन वो नहीं देते तो उनके प्रति अभाव हो जाता है, उनका नाम बराबर काम बराबर नहीं है। मैं जब देता हूँ, ये मांगती है तो मैं देती हूँ, और ये जब मैं कुछ बोलती हूँ तो ऐसा करती है। तो अभाव तो छोटे छोटे बातों में भी आदमी को आ जाता है, इंसान को। तो अभाव और तिरस्कार में क्या फर्क है, कुछ मालूम पड़ा? बहुत बड़ा फर्क है। तिरस्कार तो जबरदस्त हिंसा है, इसलिए तिरस्कार से बहुत ध्यान रखने का। तो तिरस्कार कब होता है? और जब आदमी वो खुद को अपने आप को बड़ा समझता है ना, तो वो छोटे आदमी हो, कम बुद्धि वाला हो, वो दिखने में ऐसा हो, फाइनेंशियली ऐसा हो, नॉलेज में ऐसा हो, बाय बर्थ ऐसा हो, तो अपने को एक ऐसा ईगो आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो फिर वो उनकी कोई वैल्यू नहीं करता है, वो उसके साथ बहुत रफ बिहेव करता है। इसलिए तिरस्कार तो बहुत डेंजर चीज है, इसमें तो बहुत नुकसान होता है इंसान को। लेकिन वो पहले के टाइम में होता था, लेकिन दादा भगवान ने बताया कि अभी की जो जनरेशन है उसमें भी तिरस्कार भाव बहुत कम हो गया है। इसीलिए तो ये पूरे हिंदुस्तान में इतनी सब लक्ष्मी की बोलबाला, वो इतनी जाओ जलाली दिखती है।
जो छोटे आदमी होते हैं ना, उनके प्रति बहुत तिरस्कार होता है। जो नौकरी करता है, जो सामान्य कुल में जन्म लिया होता है, जिसके पास पढ़ाई पैसा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति जब आदमी बड़ा हो जाता है ना, तो वो अपने आप में ऐसा ईगो आ जाता है, तो वो फिर दूसरे को प्रति बहुत तिरस्कार भाव करता है, बहुत रफ बिहेव करता है। तो प्रदीप दादा, जो कभी बोलते हैं कि टीचर टीचर अच्छा नहीं है, उसने अच्छा नहीं पढ़ाया, वो किस में जाता है? वो अभाव में जाता है, और फिर उससे आगे वो तिरस्कार नहीं होता है। तिरस्कार मीना उसके क्लास में जाना ही नहीं, वो पढ़ा हुआ तो उनको पूरे अटेंड ही नहीं करने का, उसके ध्यान ही नहीं देने का, वो तिरस्कार भाव होता है। वो कुछ अच्छा बोले तो अभी उसको रिजेक्ट करता है, रिस्पेक्ट करे तो अभी रिजेक्ट कर देता है, अच्छी तरह से पढ़ता नहीं है, वो पूरे हर तरफ से उनके प्रति नेगेटिव बिहेव होता है। तो ये स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो वो तिरस्कार होता है कि क्या होता है? वो स्टडी में इंटरेस्ट नहीं आता है तो खुद का नुकसान है। वो तो हर एक स्टूडेंट्स को, जो भी पढ़ता है, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि पढ़ाई तो अभी ये मेरी उम्र में पढ़ाई ही मेरी लाइफ है। अगर मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मुझे तकलीफ होगी। इसलिए पढ़ाई में तो सिंसियर रहना चाहिए, फिर बाद में जो रिजल्ट आया वो। लेकिन स्टूडेंट्स लाइफ में तो पूरे अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई से शाब्दिक ज्ञान होता है, खुद का मानसिक डेवलपमेंट भी होता है, और हर तरफ से उनको फायदा ही फायदा होता है। तो प्रदीप दादा, मोनिका दीदी का प्रॉब्लम है, और 10 मिनट कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाद में ब्रेक लेती है। वो 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 इसको इलाज क्या करने का? बराबर समझाया नहीं, मुझे सुना ही नहीं दिया। मोनिका बोलो। हाँ, मैं 10 मिनट कॉन्सेंट्रेटेडली पढ़ाई करती हूँ, बाद में वापस 5 मिनट ब्रेक लेती हूँ, और फिर से 10 मिनट पढ़ाई करती हूँ और वापस 5 मिनट ब्रेक लेती हूँ। तो उसमें क्या जानना है आपको? मुझे इससे ये ज्यादा पता चलता है मेरी मेमोरी कितनी शार्प है, वो इससे पता चलता है। हाँ, जो आपने बोला, मेरी जो समझ में आया वो मैं बताता हूँ आपको, कि 10 मिनट पढ़ने के बाद जो फिर वो वो जो अंदर जो है चलता है ना माइंड में, तो फिर उसमें हाँ, कितना याद रहा कितना वो नहीं रहा, वो पता चलता है इससे। हाँ, और ज्यादा तक तो हर एक स्टूडेंट्स को, उनको जैसे सिस्टम पता चले, तो कोई बार कोई स्टूडेंट तो पेन और लिख भी देता है कि मैंने क्या पढ़ा, वो फिर बाद में वो लिख देता है, फिर बाद में खुद चेक करता है। हमारे समय में ऐसी सिस्टम थी। अगर दूसरी एक सिस्टम ऐसी थी कि जो मैं पढ़ाई करता हूँ, तो फिर वो सामने मैंने जो पढ़ा है, तो मेरे सामने दूसरे, जो मेरी मदर है या मेरा ब्रदर जो भी है, वो उसको मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक रीडिंग किया है, और मैं बोलता हूँ आप देख लो मेरी कहाँ कहाँ गलती होती है। तो फिर वो फट 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 वो बोलता है, तो उसमें से वो पता चल जाता है कि मेरी कहाँ कहाँ मेरी कमजोरी है, कहाँ मुझे याद नहीं रहा, वो पता चल जाता है। वो अच्छे स्टूडेंट बनने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसमें हर स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से वो प्रयोग में जाना चाहिए। वो बहुत अच्छी चीज है ये। हमारे समय में ऐसा चलता था, अभी तो मुझे पता नहीं है कि कैसा है सब। नहीं, वो दूसरा एक तो सच है, ये सिस्टम तो प्रदीप दादा, वो तो है ना, हमारे समाज में भी, है। जब हम पढ़ते थे तो देखते हैं हम कितना पढ़ा, कुछ याद किया, और वो तो करते हो, सेल्फ एग्जामिनेशन होना ही मांगता है ना। हाँ, वो 100% जो उसको अच्छा स्टूडेंट बनना है उनके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा एक सिस्टम, रजनी भाई साहब, हमारे अपने समय में था कि जब वो स्टूडेंट जब पढ़ता है ना, पूरा एक पेज पढ़ जाता है, तो फिर बाद में वो क्रॉस क्वेश्चन निकालता था कि इस पढ़ने पर कितने में क्वेश्चन निकालता और उनका जवाब कैसे लिखने का। तो टीचर कोई भी कॉर्नर से उसको पूछे ना, तो वो जवाब लिख सकता था।
ऐसी सिस्टम वो टीचर हमको सिखाते थे उस टाइम पे कि आपको कैसे स्टडी करना है, लेकिन आज की सिस्टम पता नहीं है अपने को। अभी तो ये स्टडीज में बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है। वो वो खुद के लिए बहुत नुकसान है ये। देखो, जब तक मेरी समझ है तब तक कोई भी उम्र हो, लेकिन इंसान को स्टडी का प्रैक्टिस रखने जैसी है, क्योंकि उससे शब्द ज्ञान मिलता है, उनका विजन डेवलप होता है, उनकी मेमोरी शार्प होती है, उसको कोई ना कोई ऐसा उसका डेवलपमेंट होता जाता है। लेकिन जो सही मायने में उनका जो अच्छी पुस्तक हो तो बाकी उनका डेवलपमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि कोई बात समझ में नहीं आएगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए स्टडी तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं, आपने बताया ठीक है, अभी हम भी स्टडी करते हैं और दादा का ज्ञान, लिटरेचर हम अभी भी स्टडी करते हैं। तो समझ वो में तो नहीं आया। मैं बोलता हूँ अभी भी हम सब, मैं भी अभी स्टडी करता हूँ। जो इंसान है उनको स्टडी करना चाहिए, उनको जो रास्ते पे चलना है वो रास्ते पे उनको स्टडी करना चाहिए। इसमें कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी की बात करता हूं मैं। जो नेगेटिव वाली बात है उसमें तो कोई करने का मतलब ही नहीं। लेकिन देश, समाज और खुद के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और ये ज्ञान होते होते उनकी डेवलपमेंट होती है, तब वो ज्ञानी पुरुष की बात को भी समझ सकेगा, नहीं तो उनको कोई समझ में नहीं आएगा। वेरी इसलिए गुड, बहुत जरूरी है, अभ्यास बहुत जरूरी है। वेरी गुड। ओके बच्चों लोग, आई होप यू गेट द मैसेज, स्पेशली चिनाई। You have to buckle down। कार में ड्राइव करते सब तो बच्चों को है कि डोंट वेस्ट टाइम। आपको जिस लाइन में इंटरेस्ट है उसमें आप अभ्यास चालू ही रखो। पूरा समय का जो भी जितना भी समय मिले वो हमारे खुद के लिए इन्वेस्ट करो, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। ओके बच्चों लोग, हाँ, आई होप यू गेट सम मैसेज। मोनिका, हाँ खुशी, दक्ष, Taxiba, Shreya. Shreya, I hope your sound is working tomorrow, okay? Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। Okay. प्रदीप दादा, अभी हम पद सुनेंगे, चिन्हाई दीदी करेंगे, गाएंगे। दिखाई देता है? Oh, doesn't matter to you, right? माफ करना, मेरा इंटरनेट कनेक्शन इन एंड आउट होता है। ओके ओके, यू कैन स्टार्ट। सुनाई देता है? हाँ जय सच्चिदानंद। समझ हमेशा समाविदेश निबुद्धि उपराविदेश। समझ हमेशा समाविदेश निबुद्धि उपराविदेश। वालनी सामे विवाद करवा कुतति बुद्धि जड़ से हटे। अहम गवाता उखड़ी जैने कोई न बूरो करवा लड़से। हित अहित बुलिने बुकशे तरने के आशित करशे।
હિત અહિત ભૂલીને ભૂખશે તમને કેવા આશિત કરશે સમજ હંમેશા ક્ષમાવી દેશે ને બુદ્ધિ ઉપરાવી દેશે सांसारिक ने परमानित में पत अजवाड़े सम्यक बुद्धि तन्ने रस्ते अनर्थकारी तेनु नाम जे विपरीत बुद्धि सांसारिक ने परमानित में पत अजवाड़े सम्यक बुद्धि તમને રસ્તે અનર્થકારી તેનું નામ છે વિપરીત બુદ્ધિ અતિ બુદ્ધિની અલનો ગુહડપન કુછિયા વિનપન બોલી ઉઠશે સમજ હંમેશા સમાવી દેશે ને બુદ્ધિ ઉપરાવી દેશે जय सचिदानंद। जय सचिदानंद, बहुत अच्छा पद निकाला, बहुत गाया अच्छा। प्रदीप दादा, उन लोग को थोड़ा समझाओ, एक लाइन थोड़ा लेके थोड़ा थोड़ा। जो सम्यक समझण होय हिंदी 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 में ગુજરાતી ચાલશે हिंदी ગુજરાતી ચાલેगा हिंदी हिंदी वो जो समझ होती है ना वो हमेशा खुद का और दूसरे का हित वाली समझ होती है। खुद का भी नुकसान नहीं होवे और दूसरे को भी नुकसान नहीं हो, उनको समझ बोला जाता है। आपको समझ में आया? और बुद्धि कैसी होती है कि वो बुद्धि वो अहंकार के मीडियम थ्रू आती है, इसीलिए विपरीत बुद्धि भी हो सकती है। जो सम्यक बुद्धि है तो हर बातों को समाती है। समाती मतलब किसी की गलती हो गई तो कोई बात नहीं, चलो अपने कुछ रास्ता निकालेंगे, आपको कुछ लगा तो नहीं ना। लेकिन जो विपरीत बुद्धि होती है ना वो दूसरे को दुख देती है। समझ में आया? विपरीत बुद्धि खुद का नुकसान करती है और दूसरों को भी नुकसानी में डाल देती है। मतलब वो विपरीत बुद्धि है ना, वो ईगोइज्म ऐसा होता है, उनको विकृत ईगो बोलता है। वो ईगो है ना, वो कोई बात, वो अंधा है ईगोइज्म, वो बुद्धि की आंख से देखता है, इसलिए उनकी जैसा ईगो है ना वैसी बुद्धि काम करे। और जो सम्यक बुद्धि है वो ज्ञानी पुरुष की भक्ति, उनकी वचनों की आराधना, उनके पुस्तकों की अभ्यास, उनकी वो सब कुछ भक्ति करते करते उनकी बुद्धि सम्यक होती है। सम्यक बुद्धि हमेशा वो पॉजिटिव देखती है, खुद का हित और दूसरे को हित, उनका फायदा दोनों को देख सकती है और उसी तरह से वो काम लेती है। ऐसा प्रकाश है ये। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप स्टूडेंट्स है तो आपको समझ किसको बोलते हैं? तो कि सही टाइम पे उठना, स्टडी करना, स्कूल में जाना, होमवर्क करना, एग्जाम के टाइम पे अपने समय का पूरा परफेक्शन कंसंट्रेशन के साथ हमें स्टडी करना, वो समझ है कि भाई नहीं मेरा साल बिगड़ेगा, मेरा कम परसेंटेज आएगा, मेरे पापा ने इतना सब फी दिया है, मेरा ये जीवन बर्बाद हो जाएगा, मुझे नुकसान ही होगा, और घर में क्लेश होगा, सबको दुख होगा। वो सब समझ के साथ वो स्टडी करता है, उस तरह से जीता है। और जो अपनी मनमानी करता है वो विपरीत बुद्धि है, तो वो हमें उनका भी परिणाम आने वाला है। तो हमें अभी कौन से रास्ते पे चलना है वो सब खुद को ढूंढना पड़ता है कि मुझे मेरा और सबका हित दिखाती है वो बुद्धि है, तो वो सम्यक बुद्धि है। और मुझे भी घाटा होता है और दूसरे को भी नुकसान होता है, दुख होता है, ऐसा जो काम बताती है वो विपरीत बुद्धि है। आपको समझ में आया? सम्यक बुद्धि खुद की गलती दिखाएगी, विपरीत बुद्धि दूसरों की गलती दिखाएगी। सम्यक बुद्धि है वो गलती होने के बाद प्रायश्चित करेगी, और विपरीत बुद्धि है वो प्रायश्चित करने के बजाय
अटैक करेगी। वो कैसा अटैक होता है कि उनको जो बोलना है जो करना है करे, मैं जो करता हूँ सही। आपको समझ में आया? वो विपरीत बुद्धि है, उसका बहुत डेंजरस वस्तु है इस काल में। जो दादा भगवान ने बताया कि आजकल का सभी का कर्म, वातावरण और ऐसे ऐसे संजोग आए हैं, तो अच्छे अच्छे इंसान भी कभी भी कहीं किसी की चपेट में आ जावे और खुद का खाना खराबी हो जाए, उनको समझ में नहीं आता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। समझ महीना क्या होता है? एज इट इज। एज इट इज मतलब समझ क्या होती है कि मैं अगर ये अंगारे को टच करूंगा तो मेरा हाथ जलेगा, वो समझ है। समझ में आया? और विपरीत बुद्धि होती है, वो सोने की कटार जैसा होता है। वो सोने की कटार है, वो जैसे ज्ञानी पुरुष ने कुछ बोला तो उनकी बात खुद के हिसाब से ले लेगा, वो हर एक की बात अपने हिसाब से सोचेगा, और वो पेट में जब डालेगा तो वो खुद ही मर जाएगा। क्योंकि सोने की कटार है, सोने की कीमत नहीं है, लेकिन जो कटार है उसको कैसे उपयोग किया जाए वो विपरीत बुद्धि को समझ में नहीं आता है। आपको समझ में आया? इसीलिए हमें विपरीत बुद्धि से सावधान रहने की जरूरत है। हमारा फायदा नुकसान कहाँ पर है, वो जो हमें समझ में आता है वो समझ है, वो सम्यक बुद्धि है। और गलत करते हुए भी वो बात पकड़ में नहीं आती है, इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, एक्सेप्शन स्वीकार नहीं होता है, उसका प्रायश्चित नहीं होता है, वो विपरीत बुद्धि है। क्या है? समझ में आया आपको? दूसरा क्या लिखा है इसमें आगे? सांसारिक ने पारमार्थिक, मतलब कि संसार में भी नुकसान है और मोक्ष मार्ग में भी, मुक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ने के लिए बहुत खतरनाक है। पथ अजवाड़े मतलब कि वो हमें प्रकाश देती है। बुद्धि प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। वो आत्मा का इनडायरेक्ट प्रकाश को बुद्धि बोला जाता है। तो हमें वो प्रकाश का ऐसे उपयोग करना चाहिए, जैसे कि आज ट्यूबलाइट का प्रकाश है तो उसमें हमें अच्छा काम करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, कि उनकी वो प्रकाश के अंदर हमें गलत काम करना चाहिए। प्रकाश प्रकाश है, लेकिन जो करने वाला है, जो अपनी समझ से जो चलता है, उनको प्रॉफिट लॉस होता है। सही काम करने वाले को फायदा होता है, गलत काम करने वालों को नुकसान होता है। उसमें गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। समझ में आया? इसीलिए हमें ये जीवन में ऐसे दोस्त, ऐसे पुस्तक, ऐसे वातावरण हमें चुनना चाहिए, ऐसी दोस्ती रखनी चाहिए जिससे हमारी समझ अच्छी हो, हमारी प्रगति अच्छी हो। नहीं तो दादा भगवान ने बताया कि ये पूरा जगत साइंस है और सिद्धांत के बेस पे चलता है, हर चीज का रिजल्ट आता है। आप सही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो अपने आप रिजल्ट बताएगा कि आपने क्या किया। मेरी बात समझ में आया? आप फेल हो गए, उसका मतलब क्या? आपने स्टडी नहीं किया। अगर आपने स्टडी किया तो आपको याददाश्त नहीं है, और याददाश्त नहीं है तो आपको दूसरे में चीज में इंटरेस्ट है। आप कहीं ना कहीं अपनी खुद की गलती है, नहीं तो रिजल्ट कैसे आ सकता है? इसलिए हमें समझ के पीछे पड़ना चाहिए। जिनको जो समझ है, तो समझ इसको बोला जाता है कि हमारे निमित्त से सबको घर में सुख हो, जो हमें मिले उनको फायदा हो, वो सही समझ है। हम किसी को हमारे निमित्त से दुख होता है, हमारे निमित्त से तकलीफ होता है, टेंशन वरीज होता है, वो विपरीत बुद्धि है। समझ में आया? हम स्कूल में हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, हमारा जीवन ऐसी समझ के साथ जीना चाहिए कि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करें, हमारे तरफ से किसी को तकलीफ ना हो, वो हमें ध्यान में रखना है।
फिर कोई भी चीज हो, अगर समझो समझ किसको बोलते हैं, अगर मम्मी ने कुछ खाना बनाया, आपको पसंद नहीं आया, आपने खाया, फिर बाद में पता चला, तो आप उनको उनके प्रति नाराजगी व्यक्त करोगे, तो मम्मी को सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा। तो वो समझ कहाँ गई सत्संग की, वो एजुकेशन कहाँ गया? जो हम घर में ही दूसरे को, नजीक के मदर फादर को, सबको दुख देते हैं, ऐसा हमारा जब जीवन है तो समझ है ही कहाँ? आपको समझ में आया? हम स्कूल में जाते, क्यों जाते? पढ़ने जाते। अगर टीचर पढ़ाती है, उस समय हम बातें करते हैं, उस समय में इधर उधर देखते हैं, हम सही ढंग से पढ़ते नहीं है, तो वो क्या है? वो सही समझ है कि विपरीत बुद्धि है? विपरीत बुद्धि। हर जगह पे हमें देखना है, हर जगह पे। जब इंसान सुबह से उठता है तो रात को सोते तक उनका जीवन कैसा है? दूसरे को सुख होवे ऐसा है, ऑब्लाइजिंग नेचर वाला है, या दूसरे को तकलीफ होवे ऐसा है? उसके पर से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कैसी समझ है, सम्यक समझ है कि विपरीत समझ है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि बचपन से ही ये मेरा मंत्र था कि जो मुझे मिला उसको फायदा होना चाहिए, उसको सुख होना चाहिए। दूसरा दादा भगवान ने बताया कि ये मनुष्य जीवन जो है वो ऑब्लाइज करने के लिए है। मन वचन काया से किसी को हेल्प करो, किसी के सेवा करो, खुद नहीं खाओ और दूसरों को कुछ खिलाओ, उसी का काम करो, हमारे निमित्त से किसी को तकलीफ ना हो। वो तो इंसानियत का काम है। जो हम ऐसे इंसान बन सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे मम्मी पापा को ही हम दुख देते हैं। आज वो नहीं खाऊं, मुझे वो नहीं करूं, आज ये नहीं करूं। इसीलिए समझ उसको बोलते हैं कि हम दूसरों का ख्याल रखते हैं कि भाई मेरे निमित्त से किसी को दुख तो नहीं होता है ना, किसी को बोझ तो नहीं पड़ता है ना, मेरे कारण क्या क्या तकलीफ होती होगी और उसकी क्या जरूरत है, उसको हटाओ। वो इंसान है। आपको समझ में आया? समझ में आया? फिर कहीं भी हो, कहीं भी हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप स्कूल में हो, कोई रिलेटिव्स फ्रेंड्स के घर पे हो, लेकिन हमारी पूरी जो जीवन जीने का जो तरीका है वो कोई समझ के साथ होना चाहिए। वो समझ में एक ही चीज होनी चाहिए। उन्होंने दादा भगवान एक ही सेंटेंस में बताया, हित अहित का भान होना चाहिए कि मेरा हित और मेरा अहित, मेरा फायदा मेरा नुकसान कहाँ पर है, और मेरे मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो हमें प्रायश्चित करके लौटना है, करेक्शन करना है। समझे? वही समझ है। समझ तो क्या, कबीरदास साहब ने जो लिखा है और दादा ने बताया कि समझ कहाँ से मिलती है मालूम है? समझ की वो ज्ञानी पुरुष के पास समझ मिलती है, और ये ज्ञान की माता है। तो हमें ये बहुत अच्छा पद गाया आपने, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप तो अभी स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा जीवन परफेक्ट जितना हो सके इतना आप झांक लेना कि मुझे कहाँ कहाँ कैसी समझ के साथ जीवन है, कहाँ कहाँ दुख होता है। वो मेरे लिए दुख का, जिसने जितना भी दुख दिया है जाने और अनजाने में, अगर दुख हुआ है उसका परिणाम दुख ही आने वाला है। समझ में आया? कॉज एंड इफेक्ट। हमने परीक्षा में अच्छी ढंग से नहीं लिखा तो माइनस मार्क आने वाला है, रिजल्ट बिगड़ने वाला है। इसी तरह हमारा जीवन एक एग्जाम है। वो एग्जाम में हमें कैसे पास होना है, तो कि हमारे निमित्त से किसी को दुख ना हो। स्टार्ट फ्रॉम होम, ये जो दादा भगवान ने बोला, बिगिनिंग फ्रॉम होम, हमारे घर से, हमारे जीवन से हमें
ये सीखने जैसा है और शुरू करने जैसा है। बाकी तो इतनी सारी बातें दादा भगवान बताते थे कि जो अगर इंसान होते हुए भी जो हमें हमारे घर में हमारे माँ बाप को मित्र को हम सुख नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तो दुख नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसे अभी ये काल का जो परिवर्तन है, इस समय में जो वातावरण है और बहुत सारी चीजें उसमें है जिसके कारण हर इंसान टेंशन, वरीज, रफ बिहेवियर और बैड लाइफ और ऐसी स्पीच, ऐसी सोच, ऐसा जीवन हो गया है। इसलिए दादा बहुत बहुत बार बताते थे कि सबको सुख और शांति हो, सही समझ प्राप्त हो, ऐसी अपने भावना करनी है और हम खुद को भी इस मार्ग पे धीरे धीरे आगे चलना है। समझ में आया? समझ में आ गया? और हाँ? है अच्छी तरह समझा कैसे? समझ तो कल बताना हमको आपको समझ में क्या है स्टूडेंट लाइफ के लिए। हम्म? हाँ, ये सारा ये सुनना प्रदीप दादा ने जो बोला ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई, पता नहीं, जय सच्चिदानंद। जय जी सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी शेयर करवानो ऑप्शन આપજો। हाँ करो। આ સૂત્ર છે ખાતા પીતા ઉઠતા બેસતા એકાગ્રતા ન જવી જોઈએ, અંદરનું મતભેદ ન હોય મન બુદ્ધિ। આ થોડું સમજાવો જો, અંદરનું મતભેદ ના હોય મન બુદ્ધિ ના। એકાગ્રતા, ખાતા પીતા એકાગ્રતા એટલે શું? કે એની ઉપર આપણી ચિત્તની હાજરીથી આ બધી ક્રિયાઓ હાજરીમાં થવી જોઈએ। શું થવી જોઈએ? હાજરીથી થવી જોઈએ। એકાગ્રતા એટલે જ્યાં ચિત્તની હાજરી હોય ત્યાં આગળ પછી તમને બધી જ વસ્તુનો એનો તમને અનુભવ થાય। શું થાય? અનુભવ થાય। અત્યારે બધા લોકો જે ખાય છે પીવે છે એ ચિત્તનું બધું ફ્રેક્ચર થઈ ગયેલું જીવન છે। કેવું છે? ફ્રેક્ચર થઈ ગયું। અને આ જે તમે કહ્યું ને મન બુદ્ધિ એટલે શું છે? તે કે અંદર અંતસ્કરણમાં દાદા ભગવાને કહ્યું છે કે અંતસ્કરણમાં 4 ભાગ છે, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર। એ 4 ભાગમાં થી આ પાર્લામેન્ટરી પદ્ધતિ ચાલે છે। એમાં જો ડિસિઝન આવી ગયું કે ખાતા પીતા એ ચિત્તની હાજરીમાં કરવું છે એટલે પછી બધાની સાઈન એમાં થઈ જાય, ત્યાર પછી જે ત્યાં આગળ એ ક્રિયા થાય। અચ્છા। જે ખાતા પીતા જેની ચિત્તની હાજરી નથી રહેતી એટલે એનાથી પહેલામાં પહેલા શરીરમાં રોગ ઉત્પન્ન થાય અને આ ટીવી જોતા ખાવું, વાતો કરતા ખાવું અથવા તો બીજી કોઈ રીતે ચિત્તની ગેરહાજરીમાં ખાવું એ હાર્ટ એટેક ને લાવનારી ચીજ છે। શું છે? હાર્ટ એટેક। આનાથી બધી અંદરની નળીઓ ધીરે 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 જામ થતી જાય છે। એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે ચિત્તની હાજરીમાં ખાવું જોઈએ, ચિત્તની હાજરીમાં ભણવું જોઈએ, ચિત્તની હાજરીમાં વિધિ કરવી જોઈએ, ચિત્તની હાજરીમાં પદ ગાવું જોઈએ। બધું જ પ્રેઝન્સ ઓફ ચિત્ત, ચિત્તની હાજરીમાં જેટલું કામ થયું એટલું આપણનું કામ થઈ ગયું માનવાનું। કારણ કે ચિત્ત એ જ્ઞાન દર્શન ધરાવતો ભાગ છે એટલે ત્યાં અનુભવ છે। શું છે? અનુભવ છે।
અને બીજું એક છે દ્વેષ व कषाय की शुरुआत है और राग व बीज डाला तभी तभी से फिर उसका परिणाम आएगा। उसका परिणाम क्या आएगा? कषाय। यानी कि जरा जब मैं परिणाम करूं पर 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। फरीथी बोलो। द्वेष द्वेष व कषाय की शुरुआत है और राग व बीज बीज डाला डाला तभी तभी से से फिर उसका परिणाम आएगा। उसका परिणाम क्या आएगा? कषाय। कषाय। बराबर ने? हाँ, यानी यानी कि कि जब 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 परिणाम परिणाम, आएगा तब द्वेष उत्पन्न होगा। हाँ वो क्या बताया है कि ये जो राग और द्वेष है ना, वो कॉज है। क्या है? हाँ वो कॉज कैसे है? तो कि पहले अज्ञानता होती है और अज्ञानता के कारण राग द्वेष होता है। समझ में आया? हाँ और ये राग द्वेष से कारण क्रोध मान माया लोभ होता है। जैसे अच्छा। द्वेष है ये क्रोध में आता है, और जो लोभ है वो राग में आता है। लोभ और राग और माया, समझ में आया? हाँ और मान और क्रोध है वो द्वेष में आता है। तो कैसे सिस्टम है? तो कि जब अपमान होता है तब उसका प्रोटेक्शन करने के लिए क्रोध आता है, और जब लोभ है वो मीठा गुण है। जैसे पैसा मिलता है तो आदमी को खुशी होती है ना, जितना वो उनको लक्ष्मी मिलेगी, जो भी मिलेगी, जिसकी चीज का लोभ है वो सब उनको अंदर खुशी होती है। तो आपका गुण है नहीं वो कुछ पे। और वो राग इसीलिए, व बीज, राग को बीज क्यों बोला है ये थोड़ा समझाए। बीज मतलब वो हाँ अगले जन्म के लिए जो है वो बीज है कि इस जन्म के लिए बीज है, वो थोड़ा समझ। नहीं, बीज मतलब बीज, वो अभी अभी बीज पड़ता है, बीज पड़ता है तो कॉज। अगले भाव में आता है उसका परिणाम। परिणाम अगले भाव में आता है कि इस भाव में आता है बीज का? नहीं, इस भाव में नहीं, दूसरे भाव में आएगा, अच्छा। क्योंकि तो मतलब अवस्थित अभी होता है कोई पण अभी कर्म हमको का। कोई चीज अच्छी लगती है तो वो उसका उसका जो है ऐसा सब परिणाम आए, ऐसा संजोग आएगा जो हमको उसमें द्वेष द्वेष का परिणाम आएगा, ऐसा ऐसा बताते हैं ना। हाँ हाँ, ये जो राग का परिणाम द्वेष में आएगा, द्वेष का परिणाम राग में आएगा, ऐसा है। अच्छा। तो वो तो दादा इसलिए हमको दादा, हाँ बोलो। वितराग रहना है, इसलिए इसलिए हमको जो वितराग रहना है, ना द्वेष ना राग। इसलिए जो है जो वितराग रहना है, तो वो पहले वितराग कभी रह सकते हम कि पहले अज्ञानता जानी चाहिए। तो अज्ञानता गई तो फिर राग द्वेष चले जाएंगे, और राग द्वेष चले जाएंगे तो क्रोध मान माया लोभ भी चले जाएंगे। तो उसका मूल अज्ञानता है। क्या है? मूल अज्ञानता। वो अज्ञानता गई, वो कौन सी के स्वरूप की अज्ञानता। स्वरूप की अज्ञानता मतलब मैं सचमुच कौन हूं, वो उनको पता चल जाना चाहिए। तो उससे तो वो, जुदापन रहता है, इसलिए जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर जब जुदापन रहता है तो इन्वॉल्व नहीं होता है, राग द्वेष नहीं होता है, ऐसा आप बता रहे हैं। हाँ जुदापना हो गया, पर वो फिर बाद में वो सब डिस्चार्ज हो जाता है, फिर सब वीकनेस है ना वो डिस्चार्ज होती है। लेकिन उसके प्रति डिस्चार्ज हमारी होता जागृति रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? है, वितराग जागृति। तभी हम सकते हैं कि आत्मा तो वितराग ही है। आप समझ में आया? लेकिन हाँ ये जो हमारा पड़ोसी है, फाइल नंबर 1 उनको बोला दादा ने, उनके अंदर कोई भी व्यवहार में उन्होंने गुस्सा किया, झूठ बोला, किसी को दुख हो वैसा वर्तन किया, किसी के पैसे ले लिए, तो उस समय हम जो अगर जो हमारा शुद्धात्मा का लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें ये पड़ोसी को बोलना चाहिए कि तुम प्रतिक्रमण करो। अच्छा।
तो ये प्रतिक्रमण करेगा तो वो हमें उनको बोलना है, उनसे प्रतिक्रमण करवाना है, वो करेगा, वो उनको जानना है, तो धीरे धीरे हम वितराग हो सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अंदर वाला प्रकृति जितना वीकनेस पड़ी है, वो वीकनेस को हमें प्रज्ञा के प्रकाश में दिखनी चाहिए, हाँ और वो दिखे तब उनका उनके पास जहाँ जरूरत है वहां उसके साथ प्रतिक्रमण महीना पुरुषार्थ, तो हमें उनको पुरुषार्थ करना चाहिए कि तुम प्रायश्चित करो, क्योंकि हम शुद्धात्मा हो गए, लेकिन ये पुद्गल में जो कमजोरियां है वो जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक वितराग नहीं हो सकते और मोक्ष भी नहीं हो सकता है। सही, वो गलत मान्यता भी पड़ी हुई है अंदर से जो है। जो भी है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, कहीं की रिलेटिव में कोई भी सुख की मान्यता है, वो सभी को हमें ज्ञान से देख करके एक एक को उनका जागृति में दिखनी चाहिए और उनका समाधान होना, सॉल्यूशन आना चाहिए। उस समय पुरुषार्थ करना चाहिए हमें। सही, चाहे अगर आपको खाने में सुख लगा तो किसको लगा? फाइल 1 को शुद्धात्मा लगा, को नाम लगा धारी कि फाइल नंबर 1 को लगा? फाइल 1 को लगा। अब फाइल नंबर 1 को सुख कैसे लगा? तो शरीर को लगा को मन को लगा? वो मन को लगा। हाँ, वो मन को सुख लगा तो बुद्धि ने क्या किया और बोला बहुत अच्छी चीज है, दूसरी बार खाने जैसी। तो उस समय हमें पुरुषार्थ वही करना है। ये पूरी जो सिस्टम है ज्ञान की, जो दादा भगवान ने बताया है, उन्होंने जो जीवन जिया है, उस रास्ते पे हम पुरुषार्थ करेंगे तो वितरागता अपने आप सामने आ जाएगी। हम तो खुद तो वितरागी है। फाइल 1 को अच्छा लगा खाने में, लुप्ता हुई, तो फिर उसका 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 क्या जो है, मतलब शक्ति मांगना है कि या प्रतिक्रमण करना है कि मेरे से दादाजी मेरे से प्रतिक्रमण नहीं करना है, बुरा। उस समय बोलना है कि भाई वो आपको लगा लेकिन मैं अनंत सुख का धाम हूँ, उसमें सुख लगा वो टेम्पररी सुख है, अच्छा। मैं खुद अनंत सुख का धाम हूँ। क्योंकि अनंत सुख का धाम कौन है? शरीर है, मन है, बुद्धि है, कौन है? नहीं, अनंत सुख का धाम तो आत्मा। है। शुद्धात्मा। आपको समझ में आया मेरी बात? हम हाँ, जो तो है, उसके सामने उस हम टाइम जो सामने है, ये समझ कि वो टेम्पररी सुख है और ये परमानेंट सुख है, जो है ऐसा ऐसा समझना है उस टाइम। वो 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 जो भी टेम्पररी परमानेंट जो भी आप बोलो, मुझे वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं अनंत सुख का धाम हूँ। प्रदीप भाई, ये आपको जो भजिया में सुख लगा, पकोड़े में, लेकिन मैं अनंत सुख का धाम हूँ। अच्छा। ये सुख जो समझ। टेम्पररी बोलोगे जो बोलो, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं अनाहारी हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। समझ। ठीक है। क्योंकि धन्यवाद। दादा भगवान ने, ये साइंस की बात भी दूसरी बताता हूं मैं, दादा भगवान ने बताया कि जो भी पूतगल में से सुख लेगा उसको पेमेंट आएगा। क्या आएगा? पेमेंट आएगा। हाँ, क्योंकि उसमें सिर्फ हमने सुख लिया, मतलब वो अजागृति है, तो उसका पेमेंट आएगा। तो हम जागृत है तो हमें कैसे प्लस माइनस करने का? वो तो दादा की बात तो हम जितनी समझे सत्संग में तो ही प्रैक्टिकल होगा ना, तो ही अनुभव होगा। लेकिन वो बराबर पेमेंट है। अगले जन्म में आता है ना? पेमेंट अगले जन्म में आता है ना? वो जब भी आवे तब, लेकिन पेमेंट आएगा। अच्छा, ठीक है, समझ अपने गया। को तो क्या है कि मेरा जो मोक्ष मार्ग में मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे मुक्ति और वितराग होना है, उसमें बाधक कौन है? तो कि पकोड़ा नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये बुद्धि नहीं है, लेकिन मैं मेरे स्वभाव में नहीं रहा, मैं जागृत नहीं रहा,
इसलिए ये पेंडिंग रह गया। आपको समझ में आया? जी जी, क्लियर है जी, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। ओके લલિતવાજી આપણે થોડી સામાયિકની વાત કરીએ. હમણાં હજી 5 ઇન્દ્રિયોની ઉપર જ ચાલી રહ્યું છે, પણ હવે પેલા 3 હતી, હવે 4 ઇન્દ્રિયો ભેગી કરી છે. સ્પર્શ, ટેસ્ટ, સ્મેલ અને હવે આંખ જોવાનું. તો હમણાં એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો છે કે આપણે જમતી વખતે આ ચારેય ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરવાનો. શું આવ્યું, શું કેવું આવ્યું, કેવું ખાધું, શું ખાધું એનું. તો એના વિશે તમે થોડો સ્પર્શ પાડો, સાયન્સ પાડો કે જાગૃતિ વધારે કેવી રહેવી જોઈએ. જો પહેલામાં પહેલું કે હું શુદ્ધાત્મા છું, આપણને જમવા બોલાવે એટલે આપણે સમજવાનું કે ફાઇલ આવી છે, સંભાવે નિકાલ કરો, એ જાગૃતિ જોઈએ. પછી ટેબલ પર બેસનારાને જોઈએ, પછી ડીશમાં જે આવે છે એ કોણે મોકલ્યું છે, તો કે વ્યવસ્થિત મોકલ્યું છે. પછીથી એ વસ્તુને જ્યારે આપણે ઉઠાઈને જ્યારે આ હાથથી એટલે ઇન્દ્રિયો દ્વારા જ્યારે મોઢામાં જાય છે, તે એ જોતા કયા પરિણામો ઊભા થયા એને પર પરિણામ કહેવાય. પછી મોઢામાં મૂક્યા પછી જે સ્વાદ આવે છે એમાં ગમતું ના ગમતું થાય છે, એ પણ એક પર પરિણામ છે. અને એ પર પરિણામને જે જાણે છે અને જુએ છે તે આપણે સ્વપરિણામ વાળા શુદ્ધાત્મા છીએ. હવે તે વખતે કયા કયા પરિણામો ઊભા થાય છે એ પર પરિણામને જાણવા જોઈએ ને જોવા જોઈએ, તો આપણે ત્યાં મુક્તતાનો અનુભવ થાય. પછીથી હવે કયો ભાગ કેવી રીતે કામ કરે છે તે હવે આંખથી દેખાય તો આંખથી જોવાથી પણ અંદર પરિણામ ઊભા થાય કે આ બધું બરાબર દેખાતું નથી, બરાબર લાગતું નથી. ભાઈ ખાધા પછી એને ટેસ્ટ આવી જાય અને અંદર સુખ લાગે, બેભાનપણું થાય, એ પણ આપણને ખબર પડે. પછીથી આ ખાવા જેવું છે એવું પરિણામ પણ ઊભું થાય, તેને પણ જ્ઞેય તરીકે જુએ, એ પણ પર પરિણામ તરીકે જુએ. એટલે આ આખો જે અક્રમ વિજ્ઞાન છે કે જેને આ જે વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એ વિજ્ઞાનમાં જાગૃતિ મુખ્યત્વે છે. અને એ જાગૃતિ અને ઉપયોગ હોય તો જ આ બધી સિસ્ટમ આપણને ખબર પડે કે મન શું રોલ કરે છે, બુદ્ધિ શું રોલ કરે છે, અંદર કયા કયા પરિણામ ઊભા થાય છે, એ બધું આપણને ખબર પડે. એ બધું જ્ઞેય સ્વરૂપે આપણને દેખાતું જાય તો જ આપણે છૂટા ને છૂટા પડતા જઈએ અને શુદ્ધિકરણ થતું જાય, બધી માન્યતાઓ ઓળખાતી જાય કે કેવી કેવી ગાંઠોમાં પડેલી છે. એટલે મને તો આટલું સમજાય છે, બીજું કઈ તમે કહો તો હું વાત કરું પછી. ના ના, બધું બહુ સરસ છે. આ તો તમે બહુ સારા પોઈન્ટર્સ આપ્યા કે આપણે જમતી વખતે આ બધી ચારેય ઇન્દ્રિયોને કેવી રીતના કામમાં લેવાની અને આપણે શું જોવાનું, શું ના જોયું એ બધું તપાસવાનું. બહુ સરસ, બહુ સરસ. ચલો, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો તમે 3 મંત્ર આરતીબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. હા, 3 મંત્ર બોલાવો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ,
नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवस्यायाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुकारो सवपावपणाशनो सर्वपावपणाशनो मंगलाणं च संवेशीं मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ હવે પછીનો પ્રોગ્રામ આપણે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું તો જરૂર પધારજો અને આપણું સામાયિકનું જમતી વખતે ખાસ પ્રયોગ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્મા આરતીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद प्रदीपानंद जी। जय सच्चिदानंद रजनीकांत भाई। जय सच्चिदानंद सर्वे महात्माओं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद नलिनी बेन। અતુલભાઈ, અરુણાબેન, નલિનીબેન. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर्वे महात्माओं। जय सच्चिदानंद अरुणाबेन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद મહાત્માઓ જય સચ્ચિદાનંદ બોલો. જય